नमस्ते बिटिया। हमेशा खुश रहो बिटिया। This is JVN Professor Dr. Anil Kumar Wangani, HOD Department of Repertory. I welcomes you all at 1 p.m. class in May 2020 digital version 2 JVW platform, which is the best woman university in India. We are delivering these digital sessions on YouTube video channel at following link. You can see over here as per schedule provided by the university, having the best homeopathic college in Jaipur. Please listen carefully whatever I narrate, and if any doubt, drop your queries in comment box. I hope I will be able to satisfy your quest for knowledge. Any query you drop in the drop box, I will answer it in the problem solving session as allotted by the university. Let us now begin with the digital session. So today we are going to discuss Kant's view on homeopathy, part 1. We have discussed so much about Kant's repertory, its origin, how it has developed, how it has to be applied, various aspects. Now it's necessary to know about Kant's own thinking about homeopathy. So this lecture is sourced from Kant's lesser writing, chapter 64, named What is Homeopathy? Kant states that this question is a very broad one. कोई अगर मेरे से पूछता है कि होम्योपैथी क्या है तो एक बहुत ही बड़ा सवाल उसने मेरे सामने रख दिया है. Hence, its answer cannot be limited or contracted. इसका कोई छोटा आंसर तो बनता ही नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी खुद एक ओशियन है, पूरे सागर के समान है, तो उसका कोई छोटा आंसर नहीं बनता. To say that homeopathy is based upon the law of similars is but the bounding of a cone by describing its base and leaving its apex undiscovered and projected into the space. So this answer is unsatisfactory. If someone says in answer that homeopathy is based on law of similars, it's a therapeutic system based on law of similars, the person who has asked the question will never understood by this answer. It's like a cone. You are just telling the apex of the cone, and its base is lying in the space itself. When similars are mentioned, the novice immediately wonders what similars are referred to and how are given similars related to each other. एक नए व्यक्ति को अगर सिमिलिया या सिमिलर के बारे में बताया जाता है तो उसको सिर्फ ये आश्चर्य ही होता है कि सेम चीज से कोई सेम चीज को ठीक किया जा सकता है. ऐसी सोच उसको सुन के उसको सिर्फ आश्चर्य होता है, और वो ये जानना चाहता है कि वो दो सिमिलर चीजें आपस में रिलेट होती कैसे हैं. It is simple to affirm that similars nullify each other, and it is easy to demonstrate the fact, but other questions arise of greater importance and much harder to answer. How are these similars recognized and how are they utilized to cure? चलिए ये तो हर कोई मान लेगा कि दो एक जैसी चीज एक दूसरे को नलीफाई करती हैं, एंटीडोट करती हैं. एक क्लास के अंदर दो बच्चे जब एक ही क्षमता रखते हैं तो आपस में वो लोग एक दूसरे को नलीफाई करने की क्षमता भी रखते हैं. तो ये बात तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन इन सिमिलर्स को कैसे पहचाना जाता है विभिन्न पदार्थों में जो different materials, different plants,
different minerals, various sources of medicine, how they are recognized, किसमें कौन सी power है, and how they are utilized to cure the disease. The question arises. After hearing the statement that similars nullify each other and having accepted the law expressed by the formula similia similibus curanter, what homeopathy really is yet to be learned. तो केवल theoretical aspect बता देने से कोई भी इसको नहीं समझ पाता है. अभी भी इसको ये समझना बाकी रह जाता है कि actually homeopathy क्या है. The knowledge comes after due conversance with disease and drugs. जब तक कि वो होम्योपैथी के द्वारा डिजीज को ट्रीट करने में पारंगत नहीं होता, होम्योपैथिक दवाइयों को यूज करने में पारंगत नहीं होता, उसको समझ नहीं होती इस चीज की, जब तक वो उसको अप्लाई करके देख नहीं लेता, वो उसको नहीं समझ सकता. बिकॉज होम्योपैथी इज अ प्रैक्टिकल साइंस, इज अ थेरेपेटिक साइंस. इसको सिर्फ एप्लीकेशन से ही समझा जा सकता है, एक्सपीरियंस से ही इसको behold किया जा सकता है. One must acquire knowledge of disease in all its relation to the human body. और इस क्रम में हमें डिजीज का नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है कि पूरी ह्यूमन बॉडी को डिजीज कैसे अफेक्ट करता है, क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है. बिकॉज वी हैव टू लर्न व्हाट आर कॉमन सिम्टम्स टू elicit what are uncommon ones. One cannot afford to neglect any resource whereby he can gain information relating to the disease. तो इसलिए डिजीज की नॉलेज देने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज किए जाने चाहिए. कॉजेज, मॉर्बिड एनाटॉमी, ड्यूरेशन, कोर्स ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर मस्ट बी थॉरोली स्टडीड. उनका कारण, उनका अपीयरेंस, उनकी पैथोफिजियोलॉजी, वो कैसे कितने समय तक स्टेब्लिश रहते हैं शरीर के अंदर, क्या कोर्स रहता है, क्या सिक्वेली रहती है, ये सब थॉरोली स्टडी किया जाना चाहिए. The habit of each and every fixed disease must be observed to acquire a knowledge of its true nature. तो डिजीज के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है कि अधिकतर वो क्या कोर्स अपनाता है, क्योंकि यही वो कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा हम अनकॉमन सिम्टम्स को जान पाएंगे. From these, the homeopath, one must be able to predict from the present what will likely to take place in the immediate future. तो इस प्रकार व्यक्ति जब डिजीज का नॉलेज रखेगा तो जिस स्टेज में उसके पास पेशेंट आएगा तो उसको पता रहेगा कि आगे उसके साथ क्या घटित होने वाला है. He must also know the sick making substance, the sickness they produce, their course duration, the beginning and termination. ये किस चीज से हुआ है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये कितनी अवधि तक आगे बढ़ेगा, और इसकी शुरुआत कैसे होगी और इसका अंत कैसे होगा, ये सब हमें नॉलेज पहले से ही होना चाहिए. From these, the homeopath reaches similars. These are his media through which he develops the art of curing homeopathically. तो इसी द्वारा, इसी नॉलेज के द्वारा ही होम्योपैथ सिमिलिया तक पहुंच पाता है और होम्योपैथिकली किसी पेशेंट का इलाज कर पाता है. Without a careful and thoughtful study of the two, we cannot answer the question which has been selected as a subject for this paper. इस पेपर का सब्जेक्ट क्या है? What is homeopathy? इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे जब तक हम इन दो चीज की स्टडी नहीं कर लेते, क्यों? क्या? डिजीज का नॉलेज और मेडिसिन का नॉलेज. उनको जब हम अप्लाई करेंगे तो ही हम समझ पाएंगे होम्योपैथी क्या है. If one neglects a part, then he is ever crippled and in darkness as to the whole or totality. अब इसमें से किसी भी चीज को अगर सीखने में कोताही बरती जाए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, आप मेडिसिन को अप्लाई नहीं कर पाओगे. And if one neglects to study disease in any of its many sides, then he gropes in darkness during his lazy, half useful life. और अगर रोग की सही जानकारी नहीं होगी और आप इलाज करेंगे तो जीवन पर्यंत आप एक अंधेरे में रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा
कि डिजीज का क्या प्रोग्रेशन होगा, क्या कॉमन है, क्या अनकॉमन है। दवा के सिलेक्शन में भी आप पॉसिबिलिटी नहीं रह पाएगी आपके पास। इफ वन रीड्स morbid anatomy, attempts to apply remedies by such knowledge, he must live and die with a life filled with numerous failures. लेकिन अगर कोई सिर्फ एनाटमी, पैथोलॉजी, इसी बेस पे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इसी बेस पे प्रैक्टिस कर लेना चाहता है, तो भी उसकी लाइफ सैकड़ों फेलियर्स से भरी रहेगी, क्योंकि वो सिमिलिया को अप्लाई नहीं कर रहा है। द मैन हु रीड्स his symptomatology as found in drug pathogenesis may do fine work, but he has neglected the half that he should have learned. और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो सिर्फ सिम्टोमेटोलॉजी को पढ़ लेता है, ड्रग पैथोजेनेसिस को पढ़ लेता है होम्योपैथी की, उसने भी आधी चीजें गवा दी है। वो भी अब कॉमन अनकॉमन नहीं जान रहा है और गलत एप्लीकेशन कर रहा है। एक तरफ जो सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ के अपने आप को डॉक्टर बना रहा है, वो भी गलती कर रहा है, क्योंकि उसको आर्ट ऑफ अप्लाइंग सिमिलिया नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जो सिर्फ मटीरिया मेडिका, ऑर्गनन, रेपर्टरी पढ़ रहा है, वो भी गलती करेगा, क्योंकि वो डिजीज को नहीं पहचान पाएगा। तो इन दोनों ही चीजों का नॉलेज बहुत जरूरी है। द ह्यूमन बॉडी, द हाउस ऑफ बोथ हेल्थ एंड सिकनेस, must be searched until familiarity breeds contempt. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ह्यूमन बॉडी है, जिसमें कि हेल्थ भी होती है, सिकनेस भी हो जाती है, उसको समझने के लिए उसको कहाँ तक जानना होगा? जब तक फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब हम किसी के बहुत क्लोज हो जाते हैं, तब हम उसको कंटेम्प्ट भी कर पाते हैं, उसको बुरा भला बुरा भी कह पाते हैं। तो कई बार कहा जाता है कि इसको मुंह मत लगाओ, इससे क्लोज मत हो ज्यादा। तो क्लोज होने के बाद ही व्यक्ति का असली कैरेक्टर सामने आता है, या वो इतना क्लोज होता है कि इसको कोई फियर नहीं रहता है छूटने का, और वो कुछ भी बोल पाता है। फैमिली, उसको कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो हमें ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि हेल्थ और सिकनेस दोनों रहते हैं, उसको भी इतना करीब से जानना होगा कि ये कहावत हम पे लागू हो सके। तो तभी हम रोग को पहचान पाएंगे, तभी हम रोग को ठीक करने की शक्तियों को भी पहचान पाएंगे। होम्योपैथी इज द साइंस ऑफ हीलिंग बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ सिमिलर्स एज ए लॉ ऑफ सिलेक्शन। तो ठीक है, होम्योपैथी लॉ ऑफ सिमिलर से अप्लाई की जाती है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इसी आधार पर किया जाता है। टू सेलेक्ट अंडर दिस लॉ वन मस्ट बी acquainted with parts and counterparts, positives and negatives, similars, that his conclusions may be made by exclusion, that he may demonstrate to himself, as well as that remedies are not indicated, as that the one similar only can confirm to the disease in hand, appropriate because it is of all the known medicine the most like unto the disease to be cured. तो होम्योपैथी में दवा के सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, डिफरेंट सिमिलर रेमेडीज आपके सामने आएगी, तो उसमें हमें बाय एक्सक्लूजन, ये दवा ये चीज कवर नहीं कर रही, ये दवा ये चीज कवर नहीं कर रही, करते करते हम लास्ट में एक दवा तक पहुंचते हैं जो कि कंफर्म करती है हर चीज को और डिजीज को क्योर करने की क्षमता रखती है। उसको हम सिमिलिया कहते हैं, सिमिलिमम कहते हैं। It is well known that many want to be called homeopathic physicians. Some desire the appellation who in practice have not this information mentioned above. अब ये दुर्भाग्य ही है कि कई लोग जो इस मूलभूत चीज को, इस बेसिक चीज को ही नहीं जानते, और वो अपने आप में होम्योपैथिक फिजिशियन कहलाते हैं, लेकिन वो होम्योपैथिकली ट्रीट नहीं कर रहे। दे आर नॉट इवन acquainted with sick pictures, they only recognize disease in parts and not seeing the whole. अब वो लोग करते क्या हैं कि होलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते, वो लोग सिर्फ जो पर्सन अपने पार्ट्स की पीड़ा लेके आ रहा है, सिर्फ उस पार्ट्स पे ही फोकस कर लेते हैं,
और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करते हैं. सो दिस इज नॉट होम्योपैथी एग्जैक्टली. दे आर ट्रीटिंग ऑन द कॉमन वंस. These men alternate or practice by using part of the picture on one drug and a part of the picture on another to cover the two portion of supposed disease. तो ऐसे लोग अक्सर एक पार्ट की दवा फिर दूसरे पार्ट की दवा को लेकर ऑल्टरनेशन कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से पॉलीफार्मेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और सिर्फ फ्रेगमेंटरी स्टेट में ही देखते हैं डिजीज को. दे आर नॉट एक्वेंटेड विद डिजीज इन टोटलिटी. वो पूर्णता में डिजीज को नहीं देख पाते. हॉलिस्टिक उनकी अप्रोच नहीं है. दे कैन नॉट शेप अ पिक्चर इन अ सिंगल ड्रग टू फिट बट ऑन द फ्रेगमेंटेड डिजीज. वो ऐसी कोई मेडिसिन को नहीं ढूंढ पाते जो कि इन सारे पार्ट्स को एक सूत्र में कवर कर रही है. रादर वो दो तीन दवाइयों को अल्टरनेशन करने में बिलीव करते हैं और सिर्फ बॉडी को टुकड़ों में ही देखना समझते हैं. Only a few days ago, one of these men said to me, I have just prescribed arsenicum and sulfur on pathology of the case. कुछ दिन पहले डॉक्टर केंट साहब को किसी व्यक्ति ने ऐसे ही, जो कि प्रैक्टिस करता था पार्ट्स के ऊपर, कहा कि मैंने इस केस में साहब आर्सेनिक और सल्फर पैथोलॉजी के आधार पर दी. Being anxious to learn the pathology that furnishes such an infallible guide to these remedies, I made a pressing inquiry, but that which I learned was so vague, I am unable to comprehend it. मैंने बहुत समझने की कोशिश करी कि इसके कहने का क्या आधार है, पर मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है. आई ट्राई टू वर्क आउट द रेमेडीज on holistic aspect and am unable to comprehend such things. So pathology in any discourse upon disease is broad and all embracing. ठीक है, पैथोलॉजी हर डिजीज में होती है और काफी विशाल इसका फील्ड है और इसको भी समझा जाना चाहिए. द स्टडी ऑफ डिजीज एज मैनिफेस्टेड थ्रू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, a study of the lesions or results of disease as made known by physical inspection. तो एक तरफ तो हम डिजीज को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स से जानते हैं, दूसरी तरफ उसके रीजंस को फिजिकल इंस्पेक्शन से जानने की कोशिश करते हैं, जो कि पैथोलॉजी कहलाती है, मॉर्बिड एनाटॉमी कहलाती है. ऑल शुड बी नोन बाय द होम्योपैथिशियन विद अ फुल एप्रिसिएशन ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ ऑल. ठीक है, हमें सबका ही नॉलेज होना चाहिए. अच्छे तरीके से हमें इन सबका ही नॉलेज होना चाहिए, तभी हम कॉमन अनकॉमन को डिवाइड कर पाएंगे और डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. द स्टडी ऑफ ट्रू पैथोलॉजी should be encouraged and is essential to the science of homeopathy, and no homeopathician has ever discouraged it. कोई भी होम्योपैथ इस चीज का मना नहीं करता कि पैथोलॉजी समझना भी जरूरी है. जी हाँ, पैथोलॉजी भी समझना जरूरी है कि वो किस स्तर पे है, इसकी क्या क्या प्रोग्रेशन होगी और इसका क्या टर्मिनेशन होगा, ये जानने के लिए पैथोलॉजी को समझना भी जरूरी है. लेकिन the disease in its course history, every known manifestation should be considered that the individuality may appear in one grand picture. At last, हमें जब उसको ठीक करने के लिए, क्योर के लिए सिंगिलिया के प्रिंसिपल पे एक पिक्चर ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि इसमें इंडिविजुअलिटी शो करेगी. उसके आधार पे इंडिविजुअल मेडिसिन का सिलेक्शन होगा जो कि मोस्ट सिमिलर होगी, जिसको हम सिमिलम कहते हैं, और तभी हम सफल हो पाएंगे उसको क्योर करने में. Not until this picture, this totality, this individuality is clear in mind, is grasped completely. Can the physician deal with it intelligently? He will then see. In some pathogenesis, a picture with a similar totality and individuality stand out with the same bold relief. तो इसीलिए इन सब जानकारियों को इकट्ठा करके एक पिक्चर बनाना तो बहुत ही आवश्यक है. तभी हमारे माइंड में क्लियर होगा और हम इस चीज को पकड़ कर पाएंगे और इसको अच्छे से हम इंटेलिजेंटली डील कर पाएंगे. जब हम पूरी पैथोजेनेसिस को समझ लेंगे तभी हम कॉमन से जान पाएंगे और तभी हम अनकॉमन के ऊपर एक सिमिलर टोटलिटी इंडिविजुअलिटी को देख पाएंगे और दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे.
Now, if he is acquainted with both and acquainted with the grand law of selection, तो जब होम्योपैथ को डिजीज का भी नॉलेज हो जाता है, क्या उसमें कॉमन है, क्या पैथोजेनेसिस है, और मेडिसिन का भी नॉलेज हो जाता है, क्या मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, हाउ टू अप्लाई इट, और उसको ये भी पता है किसी चीज़ की लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस स्ट्रेंथ. So he will be able to administer the medicine possessing its pathogenesis like, and will be able to cure the person. So there are the primary and essential tenets of homeopathy. ये चीजें एकदम बेसिक है होम्योपैथी की, बहुत आवश्यक भी. The rest of the science is made up of degrees that perfect as they advance and are qualitative in character and quantitative in appearance. तो बाकी चीजें तो हम जब बेसिक्स को ही समझ गए, तो बाकी चीजें तो क्वालिटेटिव हैं, जो कि समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ, क्वांटिटेटिव है रादर, जो हम समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ जानते जाएंगे, और जब हम अच्छी अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो उसको क्वालिटेटिवली भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम बेहतरीन होते जाएंगे. अंडर these degrees we learn to play upon the strength of a vital heart. जिस तरह से कोई गिटार बजाता है, तो शुरू में उसकी आवाज़ आपको बड़ी रिदमिक नहीं आएगी, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता चला जाएगा तो फिर वो बहुत ही रिदमिक साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत ही हारमोनियस हो जाती है उसके साथ. इसी प्रकार होम्योपैथी की प्रैक्टिस में भी जो एक नेचुरल साइंस है, नेचुरल लॉ ऑफ केयर पे बेस्ड है. जब हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, बहुत सारे केस हमने गो थ्रू कर लिए हैं, बहुत सारे केसेस में हमने रेपरसाइजेशन कर लिया है, फिर दवाई के पहुँचने के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो फिर हमारा जो रिजल्ट है बहुत ही हारमोनियस रहेगा, यानी कि हम अधिकाधिक केसेस में क्योर कर पाएंगे. The next advancement deals with dynamization. Many are satisfied with the primary tenets of homeopathy and want no more. अधिकतर लोग जो उसके प्राइमरी एस्पेक्ट है, ये दवा है, रोग है, और उसको कैसे अप्लाई करना है, ये तीन एस्पेक्ट से समझा दिए जाए, इसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं. लेकिन कईयों को एडवांस चीज़ों में भी डील करना पड़ता है कि डायनामाइजेशन क्या है, हाउ यू डायनामाइज द मेडिसिन. They do not wish further instruction. They do not wish to make conversant with the fact that all non-surgical diseases are dynamic in character and must be cured, and are cured only by dynamic effects. वो इतनी ही बात में इतना तो समझ ही जाते हैं कि जितने भी नॉन सर्जिकल केसेस हैं जहाँ तक सर्जरी बहुत ही आवश्यक है, ऐसे केसेस को छोड़ के जो डायनामिक केसेस है, जिनके पीछे डायनामिक कॉज है, उनको इस तरह की डायनामिक पावर से हम ठीक कर सकते हैं बाय डायनामिक इफेक्ट. और ये जानने में कोई लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते कि हाउ वी अटेन दिस डायनामाइजेशन. They lose confidence in the potency of aurum when it becomes too attenuated to guarantee visible gold. And yet they know that visible gold cannot be appropriated by a living stomach. Dynamic power begins to evolve very low in the scale of potentization and may be evolved from the crude substance of some drug. अब देखिए, ये समझना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन एक बेहतरीन होम्योपैथ बनने के लिए, कि कैसे एक क्रूड ड्रग से डायनामिक पावर्स इवॉल्व होती है. तो ये बहुत धीरे 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 इवॉल्व होती है, जैसे जैसे हम पोटेंटाइज करते चले जाते हैं. हम जानते हैं क्रूड ऑरम, जो कि आपके स्टोमक के लिए बहुत खराब है, एक जहर के समान है, और वही चीज़ हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल बन जाती है जब हम उसको अटेन्यूएट करते जाते हैं, और वो दिखना बंद हो जाता है गोल्ड उसमें, लेकिन उसकी पावर्स विकसित हो जाती है पोटेंटाइजेशन के द्वारा. तो एक्सपीरियंस नॉट फिलॉसफी कैन सेटिस्फाई द हंग्री माइंड as to the truth of this grandest achievement of the immortal Hahnemann. तो हैनीमैन साहब, जिन्होंने ये महान काम किया था, ये इस साइंस की खोज की थी, जो कि इस चीज़ के लिए अमर रहेंगे हमेशा, उनकी ये जो डायनामिक पावर विकसित करने की जो चीज़, ये जो मेथड है, इसको समझने से ही अंतिम रूप से किसी भी व्यक्ति को जो होम्योपैथी के बारे में पूर्णता से जानना चाहता है, वह बेहतरीन तरीके से जान पाएगा
कैसे ये पोटेंटाइजेशन, ये स्पेकुलेशन, ये चीजें रहता है, कैसे डायनामिक पावर्स को निकाला जाता है, तभी वो उसको पूर्ण करके समझ पाता है। When fully convinced that the dynamic power cures, another advancement awaits the student. और जब वो कन्विंस हो जाता है कि डायनामिक चीजें ही क्योर कर पाती हैं, तो अब वो और भी ज्यादा जानने के लिए जिज्ञासु हो जाएगा कि डायनामिक चीजें ही को क्योर कर पा रही हैं। ऐसा क्यों है कि रोग डायनामिक एस्पेक्ट से पैदा हो रहा है, मटेरियल में ही। He is then presented to the mysteries of the dealing with automatic force of living body. अब वो इस रहस्यमयी चीज जो कि वाइटल फोर्स है, ऑटोमेटिक फोर्स है, जो लिविंग बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको जानने में उत्सुक हो जाएगा। कैसे वो डायनामिकली इफेक्ट होता है। He observes the effect of a dose of potentized medicine selected by the law of similar. तो वो नया व्यक्ति जब देखता है कि कैसे लॉ ऑफ सिमिलर के आधार पर डायनामिक मेडिसिन दी गई और उसने वास्तव में काम किया, तो वो बिलीव करता है हाँ कुछ तो डायनामिक है सही के अंदर, जिसने इस डायनामिक चीज को रेस्पॉन्ड किया इस लॉ के आधार पर। अब वो इस मिस्ट्री को जानना चाहता है कि व्हाट आर दीज ऑटोमेटिक फोर्सेस ऑफ द लिविंग बॉडी। It is indeed a small part of his observation to see the patient recover with no medicine, but that containing a dynamite step. अब वो आश्चर्यचकित भी होता है कि इसमें कोई मटेरियल नहीं है, कोई ड्रग्स का कोई मात्रा नहीं है, and still the dynamic powers are developed and they are able to cure. For greater things remain to be seen and studied. अभी तो उसको बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, समझना है। जैसा कि शुरू में कहा गया, वो ये कौन सा सामान है जिसका इफेक्ट उसको बताया जा रहा है, लेकिन जो उसका बेस है वो स्पेस में है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, समझने में इतना कुछ है कि जीवन इतनी कम है। आप देखिए डॉक्टर हैनीमैन का भी जीवन उन्होंने डिस्कवर किया होम्योपैथी को, उनका भी जीवन कम पड़ गया होम्योपैथी को पूर्ण विकसित करने का। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में अधिकतर 30-200 तक मेडिसिन यूज की, एक आध बार या 10-5 बार 1000 यूज की, लेकिन कैंसर को आगे बढ़ाया उस काम को, और एमएम तक 50 एम, सीएम, एमएम तक पोटेंशियल का विकास किया और ज़्यादा से ज़्यादा क्योर अचीव की। तो ये साइंस इतनी ब्रॉड है, खुद हैनीमैन भी इसको अपने लाइफ टाइम में पूरा नहीं देखता। So at the end of this lecture, I will like to give you an assignment of which the maximum marks allotted are 10 and time allotted is 30 minutes. The question is upon this statement: not until this picture, this totality, this individuality, which is clear in mind, is grasped completely, can the physician deal with it intelligently? तो जब तक वो पूर्ण पिक्चर फिजिशियन अपने माइंड में क्लियर नहीं कर लेता, जो कि टोटलिटी बन जाए और इंडिविजुअलिटी को शो करे, तब तक वो डील नहीं कर पाता केस। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चन है कि व्हाट टोटलिटी शुड कंसिस्ट ऑफ एज पर डॉक्टर सेन। तो पूर्ण जो पिक्चर है रोग की, उसके क्या क्या पार्ट्स होंगे, उसमें क्या क्या चाहिए डॉक्टर कैंट के अनुसार, टोटलिटी में क्या क्या चाहिए असल में, ये आपको जवाब देना है। तो बिटिया, होप liked and grasped the session. Hope I am able to satisfy the quest of your knowledge. In case there's any doubt in your mind, any queries, please mention in comment box which is given here, and I will resolve this query on the problem solving day as allotted by the university. And thanks for being attentive. May God bless you. Take care of your health. See you again in another lecture.